Namaskar dear students. Today we are going to discuss the chapter Indigo of Flamingo, the fifth chapter. In this chapter we'll talk about Gandhiji and his one of the moments that initiated the departure of the British from India in context of indigo sharecroppers. Before we move ahead, let's talk about its author. Louis Fisher is the author of it. He was born in 1896 and died in 1970. He was born in Philadelphia in 1896. He served as a volunteer in the British Army between 1918 and 1920. Such a provision is there in Britain. One can voluntarily serve in army, and he did that. Fisher made a career as a journalist and wrote for the New York Times. Fisher, our writer, made his career as a journalist and he wrote for some publications. One of them is the New York Times, the other is the Saturday Review, and for European and Asian publications also. He was also a member of the faculty of Princeton University. He was a faculty at Princeton University also. Now we move ahead. Let's talk about what is the lesson about. The story of our chapter Indigo is based on the interview taken by Louis Fisher of Mahatma Gandhi. Louis Fisher took an interview of Mahatma Gandhi. The lesson is based on that interview. In order to write on Gandhiji, Louis Fisher had visited Gandhiji in 1942 at his ashram Sevagram in Gujarat, where he was told about the Indigo movement started by Gandhiji. Gandhiji shared with him the Indigo movement, which was started by Gandhiji himself. The story revolves around the struggle of Gandhi and other prominent leaders in order to safeguard sharecroppers from the atrocities of landlords. The story of this chapter revolves around the struggle of Gandhi and other prominent leaders. Not only Gandhi, but some other leaders, prominent famous leaders were also there. They were trying to protect the sharecroppers. They were trying to protect the sharecroppers from the cruel treatment being given by the landlords. Let's move ahead. Lesson begins from here with the picture of Gandhiji. This is Gandhiji. When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, "I will tell you how it happened that I decided towards the departure of the British. It was in 1917. The statement is of Gandhiji. Gandhiji told Louis Fisher that when he first visited Gandhiji in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, what did Gandhi said? I will tell you how it happened. गांधी बोले मैं आपको बताता हूँ लुई फिशर ये कैसे हुआ. That I decided to urge, कि मैंने ये निर्णय ले लिया, डिसीजन ले लिया था, to urge, to persuade, to supper the departure of the British. कि मैं to urge the departure of the British, ब्रिटिश लोगों के यहाँ से छोड़कर जाने के लिए मैंने उनको बहुत ही कोशिश करके उनको मनाया
यू लीव फ्रॉम हेयर, आप यहां से चले जाइए। इट वॉज इन 1970, बात 1917 की है। ही हैड गॉन टू द December 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। गांधी जी हैड गॉन टू द December 1916 एनुअल कन्वेंशन, जो वार्षिक बैठक होती है उसमें गए हुए थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का लखनऊ में जो हो रहा था। देयर वर 2301 डेलीगेट्स मीन्स रिप्रेजेंटेटिव्स एंड मैनी विजिटर्स। इसमें 2301 रिप्रेजेंटेटिव थे और कई विजिटर आए हुए थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, इसकी कार्यवाही के दौरान, प्रोसीडिंग्स मीन्स कार्यवाही, ड्यूरिंग इट्स प्रोसीडिंग्स फंक्शनिंग्स, गांधी रिकाउंटेड, गांधी जी याद करते हुए कहते हैं, ए पेजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पेजेंट इन इंडिया। ए पेजेंट मीन्स स्मॉल फार्मर, एक किसान मेरे पास आया, केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पेजेंट इन इंडिया, किसी दूसरे किसान की तरह जो भारत में दिखाई देता है, ठीक वैसा ही किसान मेरे पास आया। कैसे दिखाई देता है? पुअर एंड इमेसिएटेड, वह गरीब था, एंड इमेसिएटेड, थिन था, पतला था, वेरी वीक। एंड सेड, आई एम राजकुमार शुक्ला, और उसने कहा, मैं राजकुमार शुक्ला हूं, आई एम फ्रॉम चंपारण एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट। मैं चंपारण से हूं और मैं चाहता हूं कि आप मेरे जिले में चलें, मेरे जिले में आए। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, गांधी जी ने इस स्थान का नाम नहीं सुन रखा था। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज, यह जो लॉफ्टी हिमालयाज है उसके तलहटी में था। फुट हिल उसकी तलहटी में था। नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, जो कि नेपाल के साम्राज्य के नजदीक है, नेपाल देश के नजदीक है, वहां पे था। We have discussed convention, annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. Convention can also take agreement, but we have taken the meaning as what? Baitak, session, annual session of the Indian National Congress Party. Delegates, representatives, peasant, small farmer, emaciated, a very weak and thin. Champaran, a place in Bihar. Under an ancient arrangement, the Champaran peasants were sharecroppers. Rajkumar Shukla was one of them. He was illiterate but resolute. एक ancient, एक old arrangement के तहत चंपारण के जो peasants थे वो sharecropper थे. Sharecropper means they shared their crops, the yielding of their crop. वे बटाईदार थे, वे अपनी क्रॉप को बांटते थे। किसको देते थे? टू द ऑनर ऑफ द लैंड, जमीन के मालिक को। और जमीन के मालिक कौन थे? लैंडलॉर्ड्स। कौन? लैंडलॉर्ड्स बिलोंग टू ब्रिटेन. दे हैड कम हियर इन इंडिया एंड एक्वायर्ड लैंड शेयर, यहाँ पे जमीनें एक्वायर कर ली थी उन्होंने और उनको वो बटाई पर देते थे उनको। राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम, राजकुमार शुक्ला भी उनमें से एक पेजेंट था। ही वाज आल्सो ए शेयर क्रॉपर। ही वाज इलिटरेट बट रिजोल्यूट, वह इलिटरेट था, अनपढ़ था। ही कुडंट रीड एंड राइट बट रिजोल्यूट, लेकिन डिटरमाइंड था, दृढ़ निश्चयी था। He had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar, and somebody had probably said, "Speak to Gandhi." He had come to the Congress session, where इस कांग्रेस की बैठक में आया था, to complain about the injustice of the landlord system in Bihar. जो लैंडलॉर्ड सिस्टम के द्वारा, जो जमींदारी प्रथा के द्वारा बिहार में जो इंजस्टिस किया जा रहा था, न्याय किया जा रहा था, उसके लिए शिकायत करने के लिए आया था। एंड somebody had probably said, संभवतः किसी ने कहा होगा कि इस
के बारे में आप गांधी जी से बात करो. For this matter, talk to Gandhi. That's why he had come here and asked and requested Gandhi ji to visit Champaran. Sharecroppers. Sharecroppers means a tenant farmer who gives a part of each crop as rent. जो अपनी फसल का हिस्सा रेंट के रूप में देता है, ऐसा किसान, किराएदार किसान. Resolute, determined, Gandhi told Shukla he had an appointment in Kanpur and was also committed to go to other parts of India. Gandhi told Shukla, Gandhi ने शुक्ला को बताया, he had an appointment in Kanpur, कि उसको कानपुर में मिलना है, किसी से अपॉइंटमेंट है, उसका पहले से ही एडवांस्ड प्रोग्राम है कानपुर जाने का. एंड वो वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और वो प्रतिबद्ध है भारत के दूसरे हिस्सों में भी जाने के लिए. शुक्ला accompanied him everywhere. शुक्ला उसके साथ साथ हर जगह गए. Then escorted, accompanied means here escorted or went with somebody following him. Then Gandhi returned to his ashram near Ahmedabad. तब गांधी जी लौट आए अपने आश्रम में, अहमदाबाद के जो नजदीक है. शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम. शुक्ला भी आश्रम में आ गए उसके पीछे पीछे. फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड. कई वीक्स तक गांधी जी का पीछा उन्होंने नहीं छोड़ा. फिक्स अ डेट ही बेग्ड, और उसने याचना की, रिक्वेस्ट की गांधी जी से. फिक्स अ डेट, कि एक डेट फिक्स कर दो, एक तारीख फिक्स कर दो. ऑन दैट डेट यू कैन विजिट चंपारण. Committed, dedicated, accompanied, go somewhere with someone as a companion or escort. Kanpur, British name for the city of Kanpur. Kanpur, Kanpur. That's the difference. Impressed by the sharecroppers' dynasty and story, Gandhi said, I have to be in. This is a picture of Rajendra Prasad. Impressed by the sharecroppers' dynasty and story, Gandhi said, I have to be in Calcutta on such and such a date. Sharecroppers की जो dynasty थी, जो उसकी determination थी, उससे प्रभावित होकर गांधी एंड स्टोरी, और उसकी कहानी से प्रभावित होकर, दैट ही शेयर्ड विद गांधी, ऑफ द फ्लाइट ऑफ द शेयरक्रॉपर्स इन चंपारण. गांधी जी ने कहा, आई हैव टू बी इन कलकत्ता, मुझे कलकत्ता में इस डेट को जाना है. कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर, आना, मुझसे मिलना और मुझे वहां से लेकर चलना. मंथ्स पास्ट, कई महीने बीत गए. शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज हांचेस at the appointed spot in Calcutta when Gandhi arrived. शुक्ला बैठा हुआ था on his haunches, अपनी थाइस के ऊपर. At the appointed spot, जो स्थान अपॉइंट कर रखा था, नियोजित कर रखा था, in Calcutta, कलकत्ता में. when Gandhi arrived, जब गांधी जी वहां पहुंचे तो शुक्ला ऑलरेडी वहां पे बैठे हुए थे. He waited till Gandhi was free and उस अपॉइंटेड स्पॉट पे उन्होंने इंतजार किया जब तक कि गांधी जी अपना सारे काम वो फिनिश नहीं कर चुके थे, जब तक वो फ्री नहीं हो गए थे, accomplishing the task there. Then the two of them boarded a train for the city of Patna in Bihar. फिर दोनों ही boarded, entered a train for the city of Patna in Bihar. एक ट्रेन में चढ़ लिए जो कि पटना जानी थी बिहार में. There Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad. वहाँ पे शुक्ला उनको एक वकील के घर, जिसका नाम राजेंद्र प्रसाद था, उसके घर लेकर गए. और जो व्यक्ति था who later became the president of the Congress, जो बाद में कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना, कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट बना, अध्यक्ष बना, एंड ऑफ इंडिया, और भारत का भी राष्ट्रपति बना. The picture is there. Rajendra Prasad was out of town. Rajendra Prasad कौन था? He was the first president of India. Rajendra Prasad was
आउट ऑफ टाउन, वो टाउन से कहीं बाहर गए हुए थे एट दैट टाइम व्हेन गांधी एंड राजकुमार शुक्ला विजिटेड हिज हाउस. But the servants knew Shukla as a poor yeoman who pestered their master to help the indigo sharecroppers. लेकिन जो उसके सर्वेंट्स थे वहां पे वो अच्छी तरह जानते थे शुक्ला को. They knew Shukla well as a poor yeoman. कैसे जानते थे? उन्हें मालूम था कि दिस इज अ पुअर yeoman, एक गरीब yeoman, एक स्मॉल फार्मर है, किसान है. Who pestered their master, जो उनके मास्टर को बोदर करता है, परेशान करता है, टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, ताकि उनका मालिक इंडिगो जो शेयर क्रॉपर्स हैं, बटाईदार हैं, उनकी हेल्प कर सके, मदद कर सके. सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड विद हिज कंपेनियन गांधी. इसलिए उन्होंने उसको ठहरने दिया जमीन के ऊपर उसके जो साथी के साथ, गांधी के साथ. whom they took to be another peasant, जिनको उन नौकरों ने समझा था कि ये भी कोई दूसरा किसान होगा. बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रा वाटर फ्रॉम द वेल लेस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पॉल्यूट द एंटायर शोर्स. लेकिन गांधी जी को अनुमति नहीं दी गई कि वह वहां पर कुएं से पानी खींच सके. रीजन, लेस्ट कहीं सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट, उसकी बाल्टी से जो कुछ बूंदे गिरकर पोल्यूट द एंटायर सोर्स, पूरे कुएं के पानी को खराब न कर दें. हाउ डिड, पोल्यूट मीन्स एयर, खराब करना, टू स्पॉयल. हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल. उन्हें कैसे मालूम पड़े कि गांधी जी कोई अनटचेबल नहीं थे, गांधी जी कोई नीची जाति के व्यक्ति नहीं थे. सो untouchability was so deeply rooted at that time in India, you can see. Tenacity, determination, hunches, thighs, board it, get on, enter, yeoman, a man who cultivates a small piece of land, small farmer, you can say. Pestered, bother, harass, permitted, allowed. Now next para. Gandhi decided to go first to Muzaffarpur, which was en route to Champaran, to obtain a more complete information about conditions than Shukla was capable of imparting. गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो पहले मुजफ्फरपुर जाएंगे, जो कि ऑन द वे टू चंपारण, चंपारण के रास्ते में आता था. en route means on the way to Champaran, to obtain a more complete information, ज्यादा पूर्ण सूचना जानने के लिए, अबाउट कंडीशंस, उन परिस्थितियों के बारे में, देन शुक्ला वाज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग. जो शुक्ला दे पाया था उससे कहीं ज्यादा उन परिस्थितियों के बारे में जानकारी लेने के लिए गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो मुजफ्फरपुर विजिट करेंगे फर्स्ट, एज इट वाज ऑन द वे टू चंपारण. ही अकॉर्डिंगली सेंट ए टेलीग्राम टू प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी एंड स्टूडेंट्स. इसी के साथ उन्होंने क्या किया, एक टेलीग्राम सेंड कर दिया प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी को, ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर. आर्ट्स कॉलेज जो था मुजफ्फरपुर में, उसमें प्रोफेसर थे, उनको टेलीग्राम कर दिया, एक संदेश भेज दिया. whom he had seen at टैगोर शांति निकेतन स्कूल. जे.बी. कृपलानी से गांधी जी हैड मेट, कहां पे मिले थे, एट टैगोर शांति निकेतन स्कूल. टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में, रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में मिल चुके थे. सो अब वो उनके यहां मुजफ्फरपुर में आए तो उनको टेलीग्राम कर दिया. द ट्रेन अराइव एट मिडनाइट. ट्रेन आधी रात में वहां पर पहुंची 15 अप्रैल 1917 को. कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद ए लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स. कृपलानी, प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी स्टेशन पर इंतजार कर रहे थे गांधी जी का, अपने बहुत सारे विद्यार्थियों को लेकर. गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी. गांधी जी मुजफ्फरपुर में 2 दिन तक रहे प्रोफेसर मलकानी के हाउस में, ए टीचर इन ए गवर्नमेंट स्कूल, जो कि गवर्नमेंट स्कूल में एक टीचर थे, उनके घर पर रुके वहां पर. इम्पार्टिंग मीन्स पास ऑन, गिविंग, इट इज देयर. It was an extraordinary thing in those days, Gandhi commented, for a government professor to harbor a man like me. गांधी जी कहते हैं कि ये एक असाधारण चीज थी
उन दिनों यह एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनयूजुअल थिंग थी। क्योंकि फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर ए मैन लाइक मी, एक गवर्नमेंट प्रोफेसर मेरे जैसे व्यक्ति को अपने घर पे शेल्टर दे, हार्बर मीन्स टू गिव शेल्टर, मेरे जैसे आदमी को घर पे ठहराए, उन दिनों ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग थी। इन स्मॉलर लोकेलिटीज द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। रीजन ये था कि जो छोटे शहर थे, जो छोटे कस्बे थे, द इंडियंस वर अफ्रेड, भारतीय डरते थे, इंडियंस डरते थे, टू शो सिंपैथी, सहानुभूति दिखाने से, फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, जो होम रूल के समर्थक थे, एडवोकेट्स जो सपोर्टर थे होम रूल के, शव शासन के, उनके प्रति सहानुभूति दिखाने से डरते थे। क्या फियर था? दे फियर दैट इफ दे शो सिंपैथी टुवर्ड्स देम, द ब्रिटिश कंसिडरिंग देम देयर एनिमी could put them into jail behind bars, could harass them. The news of Gandhi's advent and of the nature of his mission spread quickly through Muzaffarpur and to Champaran. जो समाचार था गांधी जी के एडवेंट आने का, अराइवल, एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन, और किस मिशन पे वो आए थे, उसके मिशन की नेचर क्या थी, स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर में फैल गया, वहां से होते हुए चंपारण तक पहुंच गया उनका मैसेज, जो समाचार था, द न्यूज। Sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by conveyance to see their champion. जो बटाईदार थे चंपारण से, चंपारण डिस्ट्रिक्ट से, वो वहां पे आना शुरू हो गए, पैदल चलकर, ऑन फुट, पैदल चलकर, एंड बाय कन्वेंस या किसी अन्य यातायात के साधन का प्रयोग करके अपने विजेता को देखने के लिए, टू सी देयर चैंपियन, अपने विजेता को, अपने विक्ट्री मैन को देखने के लिए। मुजफ्फरपुर लायर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम, मुजफ्फरपुर के वकील मिलने आए गांधी जी को स्थिति से अवगत कराने के लिए, टू ब्रीफ हिम, टू टेल हिम द plight of the sharecroppers or the peasants there. They frequently represented peasant groups in court. वे हमेशा रिप्रेजेंट करते थे, प्रतिनिधित्व करते थे इन किसानों के समूहों का कोर्ट में। They told him about their cases and reported the size of their fee. उन्होंने बताया गांधी जी को कि इनके क्या केसेस चल रहे हैं, गोइंग ऑन इन द कोर्ट, एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी, और उसके साथ उन्होंने कितनी वो फीस उनसे चार्ज करते हैं ये भी बताया। Extraordinary, exceptional, remarkable, harbor, here entertain, sympathy, sport, pity, advocate, supporter, protector, advent, rival, conveyance, transportation. Gandhi chided the lawyers for collecting big fee from the sharecroppers. Chided, rebuked. गांधी जी ने धमकाया वकीलों को कि तुम शेयर क्रॉपर से इतनी बड़ी फीस वसूलते हो, सच ए हाई फी। He said, I have come to the conclusion that we should stop going to the law courts. उन्होंने कहा, मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं that we should stop going to the law courts, कि हमें इन कानून के कोर्ट जो है, दरबार है, इनमें जाना छोड़ देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। Taking such cases to the courts does little good. इस तरह के केसेस को, इस तरह के विषयों को कोर्ट में ले जाने से कोई फायदा नहीं होता। डज लिटिल गुड मीन्स डज नो गुड एट ऑल। वेयर द पेरेंट्स आर सो क्रस्ड एंड फियर स्ट्रिकन, लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस। जहां पे जो किसान हैं वो इतने दबे हुए हैं, एंड फियर स्ट्रिकन, और इतने डरे हुए हैं, सो क्रस्ड एंड फियर स्ट्रिकन, इतने दबे हुए और इतने फियर स्ट्रिकन हैं, इतने डरे हुए हैं। लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, तो इन कानून की जो कोर्ट हैं इनका कोई फायदा नहीं है। आर यूजलेस, दे आर ऑफ नो यूज।
The real relief for them is to be free from fear. वास्तविक राहत इनके लिए होगी कि उन्हें इस डर से मुक्त कराया जाए. Most of the arable land in the Champaran district was divided into large estates owned by Englishmen and worked by Indian tenants. ज्यादातर जो कल्टीवेबल लैंड थी जिसपे खेती की जा सकती थी, that can be cultivated, चंपारण डिस्ट्रिक्ट में was divided into large estates. ये बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी में, एस्टेट्स में बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी में बटी हुई थी जिनके मालिक अंग्रेज हुआ करते थे. एंड वर्क बाय इंडियन टेनेंट्स, और भारतीय जो फार्मर हैं जो रेंट के ऊपर काम करते हैं वो इनके ऊपर वर्क किया करते थे, खेती किया करते थे. द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, और जो मुख्य मेन जो वाणिज्यिक फसल थी जिससे बेचकर कैश मिल सकता था वो इंडिगो ही थी, वो नील ही थी. The landlords compelled all tenants to plant 3/20th or 15% of their holding with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. Landlords जो थे वो compel करते थे all tenants को, इन सभी किसानों को जो किराएदार किसान थे उनको, to plant 3/20th और 15% of their holdings, कि वो लगाएं. Plant means here to grow 3/20th, 3/20 हिस्सा या फिर 15% जो उनकी जमीन होती थी उसका 15% जमीन पर विद इंडिगो, उस पर इंडिगो प्लांट करें, इंडिगो ग्रो करें, ये फसल लगाएं. एंड सरेंडर, और दे दें द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, ये जितनी भी इंडिगो इसमें पैदा होती है द यील्डेड क्रॉप वो किराए के रूप में उन लैंडलॉर्ड्स को दे दें. दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा एक लंबे समय का कॉन्ट्रैक्ट था उसके तहत ऐसा किया जा रहा था. टिल हेयर यू विल वॉच एंड रीड द चैप्टर. नेक्स्ट रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट